Hello students, this is the last topic which we are going to discuss in this chapter, and that is viruses and viroids. Lichens we have already discussed. Now you all have studied that the viruses are actually an exception to the cell theory. Okay? It is also in between living and non-living. So viruses do not find any place in the five kingdom classification of Whitaker. Okay, why? Because we all know that the five kingdom classification which is done is basically done on some criteria, like we consider the cell structure, we consider the presence or absence of cell wall, we consider the presence or absence of photosynthetic pigments, and so on. Then the mode of nutrition, isn't it, heterotrophic or autotrophic. So these are the different criteria which we use to organize organisms into the five kingdom classification. But you see that viruses are the only viruses and viroids, these are the only organisms which do not have any link, which do not have place in the five kingdom classification, because they are acellular organism. The first and the very most important characteristic of a virus is that it is acellular, means कि दुनिया में जितनी भी organisms है सबका जो है basic unit क्या है. You all know that cell is the basic structural and functional unit of life, and all living organisms are made up of cell. But if we talk about virus, the virus is not having any cellular structure. उसका बनावट, उसकी स्ट्रक्चर ऐसी है ही नहीं जैसे कि और सेल्स में होती है. इसका मतलब कि वो एसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म है. ठीक है. अब चूँकि हमने पढ़ा है सेल थ्योरी में कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स, पहला स्टेटमेंट यही होता है सेल थ्योरी का, एंड दैट कि सेल इज़ द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म. बट यहाँ पर हम देख सकते हैं कि सेल है ही नहीं, तो स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट की तो बात ही नहीं है. इसका मतलब कि ये लिविंग ऑर्गेनिज्म हम इसको नहीं कह सकते. लेकिन वी ऑल आर अवेयर ऑफ द पैंडेमिक विच इज़ अकरिंग इन आवर वर्ल्ड टुडे, दैट इज़ कोरोना वायरस, इजंट इट. तो दैट मीन्स इट इज़ ट्रांसफरिंग फ्रॉम वन पर्सन टू अदर, it is growing, it is multiplying, it is spreading, and we all know that reproduction and cell division and growing in number is the characteristic of living organisms, isn't it? So just because it is not having cellular structure, we are saying it is non-living. But since it is multiplying and it is transferring from one individual to other, it's growing in number, that means it can be somehow considered as living. So therefore we come to a conclusion that viruses are a link between living and non-living organisms. Okay, so viruses are what? They are so first characteristic of viruses, it is acellular organism. Second is it is a link between living and non-living. Okay, now all of us have suffered from common cold or flu. We all know it is caused by a type of virus. That means cough and cold is a viral disease, isn't it? Then viruses do not find a place in classification since they are not truly living. I've already told you, if we understand living as those organisms that have a cell structure, that means कि इनका cellular structure नहीं होता है, इसलिए हम इसको लिविंग कंसिडर नहीं कर सकते. और जब ये लिविंग कंसिडर नहीं हो रहे तो हम इनको फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन में कैसे रख सकते हैं? ठीक है. अच्छा, नाउ दीज वायरसेस आर नॉन सेल्युलर ऑर्गेनिजम्स दैट आर कैरेक्टराइज्ड बाय हैविंग एन इनर्ट क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर आउटसाइड द लिविंग सेल. इसका मतलब कि वायरस की सबसे इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि जब तक वो बाहर ही सराउंडिंग में होगा, as long as it is in the outside surrounding or environment, it will behave like dead, means it will behave like an inanimate object. बिल्कुल केमिकल की तरह. जैसे लेबोरेटरी में, केमिकल लैब में अगर आप जाए तो वहाँ पे मान लीजिए बॉटल्स में क्या है, केमिकल्स स्टोर होके रखे हैं. ठीक है.
तो अब केमिकल्स को हम क्या बोलेंगे? ना हम लिविंग बोल सकते हैं, ना हम डेड बोल सकते हैं, ना हम नॉन लिविंग बोल सकते हैं, इज़न्ट इट? तो एक तरह से ये वायरस भी क्या है कि एज लॉन्ग एज दे आर आउट्स इन द आउटसाइड इन्वायरमेंट इन द सराउंडिंग्स, इज़न्ट इट? सो दे विल जस्ट बी no more than a chemical. But as soon as they come in contact with any living object, that means object का मतलब हमारा यहाँ पे living cell से, as soon as they come in contact with a living cell, तो वो क्या करते हैं कि उनकी जो मल्टीप्लिकेशन की कैपेसिटी है, ठीक है, वो एक्टिवेट हो जाती है और वो उस सेल को फोर्स करते हैं कि वो सेल उन जैसे कई सारे वायरसेस को प्रोड्यूस करे। इसका मतलब कि जब तक वो लिविंग सेल के बाहर थे वो बिल्कुल केमिकल की तरह थे, नॉन लिविंग थे, लेकिन जैसे ही उनको कोई लिविंग सेल का कॉन्टैक्ट मिला वैसे वो क्या हो गए? एक्टिवेट हो गए, एंड दे आर नाउ कंसिडर्ड टू बी लिविंग, ओके, because they are multiplying and the multiplication rate is not slow, it is very fast. Within seconds they can multiply into millions. So that is why the pandemic is so much dangerous. That's why we are taking so many precautions against this coronavirus. So because viruses are very notorious, like why? Because they behave as just simple crystalline chemical solids as long as they are in the outside surrounding, but once they find any contact with the living organisms, then what happens? That they start multiplying in huge number and thus their number increases. फिर क्या होगा धीरे धीरे कि जिस सेल को वो अटैक करते हैं, जिस सेल को वो हॉस्टेज बनाते हैं, उस सेल को ये फोर्स करते हैं, उस सेल के अलावा उसके जो आसपास के नेबरिंग सेल्स होंगे उनको भी कॉन्कर कर लेंगे, ठीक है। जैसे कि क्या होता था पहले, जो किंग होते थे ऑफ डिफरेंट कंट्रीज़, ठीक है, या जो ऑफ डिफरेंट बाउंड्रीज़, तो क्या करते थे कि बस एक शहर पे अटैक करते थे और जैसे उस पर कब्ज़ा हो जाता था तो उसके रिलेटेड आसपास के जितने भी किले थे, जितने भी एरियाज़ होते थे, उनको कॉन्कर करते चलते थे। सेम ये वायरस के साथ भी होता है कि जैसे ही वो एक सेल में एंट्री पाएगा, वो पूरे के पूरे उसके आसपास के जितने भी सेल्स होंगे उनको डेफिनेटली वो हार्म करेगा। और हार्म कैसे करता है कि वो फोर्स करता है उन सारे सेल्स को कि तुम अपनी चीज़ें ना बनाओ, तुम मेरी चीज़ें बनाओ। मतलब कि दे फोर्स द होस्टेज सेल नॉट टू प्रोड्यूस देयर प्रोटीन्स बट टू प्रोड्यूस द वायरल प्रोटीन्स, ओके। So that is why viruses are so notorious. Now if we consider the history of this virus, then the name virus means poisonous fluid or venom. Virus का मतलब क्या होता है? जहर, venom या poisonous fluid. And this name was given by Louis Pasteur. ठीक है। Next, D.J. Ivanovsky in 1892 recognized certain microbes as casual organisms of mosaic disease of tobacco. They were found to be smaller than bacteria because they passed through bacteria-proof filters. Ivanovsky ने जो है, he recognized certain microorganisms. उनको पता नहीं था कि ये एक्चुअली टोबैको में एक डिजीज़ होता है जिसको हम बोलते हैं टोबैको मोज़ैक डिजीज़। टोबैको, ठीक है, तंबाकू। तो मोज़ैक वर्ड यू ऑल मस्ट बी नोइंग। मोज़ैक मतलब कि जिसको हम कॉमन लैंग्वेज में बोलते हैं चितकबरा, ठीक है। लाइक कुछ कलर के, कुछ अलग कलर के होते हैं ना, जैसे कि टाइल्स होती है मोज़ैक टाइल्स, ठीक है, तो उसको बोलते हैं मोज़ैक। तो टोबैको प्लांट में क्या होता है कि जब ये कुछ वायरसेस अटैक करते हैं तो उनके अंदर क्या होता है कि वो टोबैको के अंदर कई सारे पिगमेंटेशंस हो जाते हैं अलग अलग कलर्स के, और वो प्लांट सड़ने लगता है, तो उसको हम बोलते हैं टोबैको मोज़ैक डिजीज़। तो इवानोस्की ने उसको रिकॉग्नाइज़ किया कि कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि टोबैको में कौन सी डिजीज़ कॉज कर रहे हैं? मोज़ैक डिजीज़। फिर उन्होंने क्या किया
कि उन्होंने इन्वेस्टिगेट किया और ये पाया कि ये बैक्टीरिया नहीं है, ये जो डिज़ीज़ कॉज कर रहा है टोबैको प्लांट में, ये बैक्टीरिया नहीं है। क्यों? क्योंकि ये बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर्स, मतलब कि जो टोबैको प्लांट इन्फेक्ट हुआ था मोज़ैक डिजीज़ से, उसका इन्होंने क्या किया, एक्सट्रैक्ट निकाला, लिक्विड एक्सट्रैक्ट बनाया, और उस एक्सट्रैक्ट को बहुत ही बिग फिल्टर्स आते हैं बैक्टीरिया के, बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर्स आते हैं। तो क्या हुआ कि इनको लगा कि अगर बैक्टीरिया होगा उस प्लांट में तो वो फिल्टर करने पे छन जाएगा और सिर्फ जो है जो क्लियर लिक्विड होगा वो नीचे जाएगा। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि उन्होंने देखा कि फ़िल्टर करने के बावजूद उस लिक्विड में जो है कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स अभी भी थे जो और उस लिक्विड को मतलब डीजनरेट किए जा रहे थे। इसका मतलब ये हुआ कि वायरस का एक और कैरेक्टरिस्टिक हमको मिला कि वो इतने स्मॉल होते हैं साइज़ में, मतलब बैक्टीरिया से भी साइज़ में स्मॉल होते हैं, और वो फिल्टर्स के थ्रू भी पास कर सकते हैं। ठीक। नेक्स्ट इज M.W. Bijurnik in 1898 demonstrated the extract of the infected plant of tobacco could cause infection in healthy plants and called the fluid as Contagium vivum fluidum or infectious living fluid. फिर M.W. Bijurnik ने पाया कि ये ना सिर्फ इन्फेक्शन कॉज करते हैं बल्कि ये इन्फेक्शन जो है वो फैलाते भी हैं। अगर इनके कांटेक्ट में कोई हेल्दी प्लांट भी आ गया तो वो भी अफेक्ट होगा। ठीक है, अभी क्या हो रहा है कोरोना के केस में, 1% इज अफेक्टेड, देन ऑल द पर्सन रिलेटेड टू दैट पर्सन इन्फेक्टेड वन विल बी इन्फेक्टेड। इसका मतलब कि ये ना सिर्फ डिजीज़ कॉज करते हैं बल्कि इन्फेक्शन भी स्प्रेड करते हैं। इसीलिए M. Bijurnik ने उन्हें वर्ड दिया, वो जो फ्लूइड एक्सट्रैक्ट था टोबैको मोज़ैक प्लांट का, वो टोबैको जिसमें मोज़ैक डिजीज़ हुआ था उसका जो फ्लूइड बनाया था, जो कि वो इन्फेक्शियस हो गया था वायरस की वजह से, तो उसको उन्होंने नाम दिया क्या, कंटैजियम वाइवम फ्लूइडम, मतलब इन्फेक्शियस लिविंग फ्लूइड। Then W.M. Stanley in 1935 showed that viruses could be crystallized and crystals consist largely of proteins. They are inert outside the specific host and they are obligate parasites. तो W.M. Stanley 1935 में उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया और उन्होंने ये पाया कि वायरसेस जो है वो बिल्कुल केमिकल्स की तरह क्रिस्टलाइज करके स्टोर किए जा सकते हैं। बस इंतज़ार किस बात का होगा, उन प्रोटीन क्रिस्टल्स को, कि जैसे वो किसी लिविंग होस्ट के कांटेक्ट में आएंगे वो अपने आप एक्टिवेट होकर लिविंग बन जाते हैं। ठीक है। Now, if we talk about the structure of the virus, there are two examples are given in your book. Number one is tobacco mosaic virus TMV and number two is bacteriophage. तो tobacco mosaic virus या TMV वो वायरस है जो टोबैको प्लांट में मोज़ैक डिजीज़ कॉज करता है, और बैक्टीरियोफेज वो वायरस है जो बैक्टीरियल सेल को अफेक्ट करता है, इन्फेक्ट या अफेक्ट करता है। ठीक। अब दोनों का स्ट्रक्चर अगर हम देखें तो इफ़ वी सी द सिंपलेस्ट फॉर्म दैट इज टोबैको मोज़ैक फॉर्म ऑफ दिस वायरस, यू कैन सी अ पिंक कलर RNA which is helical, ठीक है, and rest of the portion is made up of green leaf like units which is known as कैप्सिड। ठीक है। जनरली एक वायरस के सिर्फ दो पार्ट्स होते हैं। ठीक है, वायरस इज हैविंग टू पार्ट्स, नंबर वन द जेनेटिक मटेरियल एंड नंबर टू द प्रोटीन कोट। ओके, नंबर वन इज द जेनेटिक मटेरियल एंड नंबर टू इज द प्रोटीन कोट। इसके अलावा वायरस में कोई एडिशनल स्ट्रक्चर नहीं होता है, कोई केमिकल, कोई मॉलिक्यूल नहीं होगा। जेनेटिक मटेरियल क्यों होता है? क्योंकि वो मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑब्वियसली उनके अंदर जेनेटिक मटेरियल होना चाहिए, तभी वो मल्टीप्लाई कर पाएंगे। ठीक है, और उस जेनेटिक मटेरियल को कवर करने के लिए उनके पास एक प्रोटीन की कोट होती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? कैप्सिड। तो बेसिकली अ वायरस कंसिस्ट ऑफ अ जेनेटिक मटेरियल and it is surrounded by huge amount of protein and that protein is known as capsid. तो ये पूरा ग्रीन पोर्शन जो TMV में है वो क्या है? कैप्सिड है। कैप्सिड क्या है? सिंपल लैंग्वेज में प्रोटीन कोट। इट इज़ अ प्रोटीन कोट। और हर एक लीफ लाइक स्ट्रक्चर जो दिख रहा है डायग्राम में वो क्या है? कैप्सोमियर। ठीक है,
एक यूनिट को क्या बोलेंगे, कैप्सोमियर, और पूरा जो प्रोटीन कोड बन रहा है कैप्सोमियर से उसको क्या बोलेंगे, कैप्सिड। उसके अलावा उसके अंदर जेनेटिक मटेरियल होता है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि जितने भी वायरसेस हैं वो सब डिफरेंट टाइप्स के हो सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन कि उनके अंदर कौन सा जेनेटिक मटेरियल है। वायरस में हमेशा, जैसे हमारा ह्यूमन सेल है तो हमारे पास आरएनए भी है जेनेटिक मटेरियल और डीएनए भी है जेनेटिक मटेरियल, इजंट इट? बट न्यूक्लियोटाइड के नाम पे वी आर हैविंग आरएनए आल्सो एंड डीएनए आल्सो, बट इन वायरसेस ओनली वन जेनेटिक मटेरियल विल बी प्रेजेंट, आइदर आरएनए और डीएनए। समझ में आई बात? वायरस में जो है वो सिर्फ एक ही टाइप का न्यूक्लिक एसिड होगा, या तो राइबोन्यूक्लिक एसिड आरएनए होगा या डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड डीएनए होगा। कभी भी एक वायरस में दोनों आरएनए और डीएनए नहीं होंगे। मार्क माय वर्ड्स दैट इन अ वायरस ओनली वन टाइप ऑफ जेनेटिक मटेरियल इज प्रेजेंट, आइदर आरएनए और डीएनए बट नेवर बोथ। ओके, अच्छा, अब ये आरएनए जो है, आरएनए और डीएनए जो है उसमें भी वेरिएशंस है। मान लो कोई वायरस है जो डीएनए है, जिसके अंदर जेनेटिक मटेरियल क्या है, डीएनए है। अब डीएनए वी ऑल नो इट इज़ व्हाट, डबल हेलिकल इन नेचर, इजंट इट? दो हेलिक्स होते हैं। डायग्राम देखा होगा डीएनए का कि इट इज़ हैविंग टू स्ट्रैंड्स। डीएनए में, हर एक डीएनए के मॉलिक्यूल में दो स्ट्रैंड्स होते हैं। तो किसी किसी वायरस में एक स्ट्रैंड डीएनए भी हो सकता है, किसी वायरस में दो स्ट्रैंड डीएनए भी हो सकता है। ठीक है, तो वायरसेस कैन हैव जेनेटिक मटेरियल आइदर डीएनए और आरएनए, और डीएनए में भी उनके पास या तो सिंगल ही स्ट्रैंड होगा या डबल स्ट्रैंड भी हो सकता है डीएनए। ठीक है, लेकिन जेनेटिक मटेरियल के अलावा प्रोटीन, और प्रोटीन के अलावा उनके पास कुछ भी नहीं होता है। और ये प्रोटीन की कोट ही है जो उन्हें मल्टीप्लाई करने में हेल्प करती है, जो उनको एक प्रोटेक्टिव कवरिंग बनाती है, जो उनकी प्रोटेक्शन करती है। ठीक है, सो दैट मीन्स प्रोटीन इज़ वेरी, इट्स लाइक बॉडीगार्ड टू द ऑफ द वायरस। तो पूरे वायरस में सिर्फ दो ही चीज़ें होती हैं, बहुत सिंपलर स्ट्रक्चर होता है। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं ना सेल वॉल है, ना बाकी सारे ऑर्गेनेलीज हैं। ठीक है, कुछ भी नहीं है, बस क्या है, एक प्रोटीन की कोट है और जेनेटिक मटेरियल है, वो भी सिर्फ एक। ठीक है, या तो आरएनए होगा या डीएनए। सो टोबैको मोज़ाइक वायरस, यू कैन सी द डायग्राम, दिस डायग्राम इज इम्पॉर्टेंट। नाउ नेक्स्ट फिगर यू कैन सी बैक्टीरियोफेज। इसमें भी क्या है, इसका फिगर जो है, you can see it is having a polyhedral head, then collar, okay, collar, okay, or you can write neck also, neck collar, okay, then a sheath of protein and then tail fibers. ठीक है, हेड के अंदर क्या होगा, एक जेनेटिक मटेरियल होगा, और उसके अलावा जितना भी पोर्शन बना है वो सारा का सारा किससे बना है, प्रोटीन का बना है। तो इसका कुछ स्ट्रक्चर ऐसा है, हेड, कॉलर, शीथ एंड टेल फाइबर। ये टेल फाइबर्स जो है, इस टेल फाइबर से क्या करता है, ये बैक्टीरियोफेज बैक्टीरिया को के सेल को पकड़ता है, ग्रैब करने का काम करता है। इट ग्रैब्स द बैक्टीरियल सेल विद द हेल्प ऑफ दिस टेल। ठीक है, और जैसे ही कोई बैक्टीरियल सेल को ये पकड़ता है, फिर उसके अंदर क्या होगा कि ये कॉलर पोर्शन, ये शीथ पोर्शन क्या होगा, ये स्प्रिंग की तरह होता है, तो ये दबेगा नीचे की तरफ, कंप्रेस होगा, और हेड के अंदर जो भी जेनेटिक मटेरियल होगा इस वायरस के, वो अपना जेनेटिक मटेरियल क्या करेगा, उस बैक्टीरियल सेल के अंदर डाल देता है। तो इससे क्या होगा कि वो बैक्टीरियल सेल उसका होस्ट बन जाता है। ठीक है, सो दीज आर द टू स्ट्रक्चर्स ऑफ टोबैको मोज़ाइक वायरस एंड बैक्टीरियोफेज। बोथ द डायग्राम्स इज इम्पॉर्टेंट and you should practice them. Okay, so in addition to the protein, viruses also contain genetic material that could be either RNA or DNA. No virus contain both RNA and DNA. A virus is a nucleoprotein and the genetic material is infectious. ठीक है, तो वायरस को अगर एक वर्ड में डिफाइन करना हो तो वो क्या है, न्यूक्लियोप्रोटीन है, and it is having the genetic material which is infectious. In general, viruses that infect the plants have single-stranded RNA, and viruses that infect animals either have single or double-stranded RNA or double-stranded DNA. अब कुछ वायरस होते हैं जो प्लांट्स को सिर्फ इन्फेक्ट करते हैं,
कुछ होते हैं जो सिर्फ एनिमल्स को इफ़ेक्ट करते हैं, ठीक है। तो कुछ प्लांट्स जो वायरस जो प्लांट्स को इन्फेक्ट करते हैं वो बेसिकली कैसे होते हैं, उनमें जेनेटिक मटेरियल कैसा होता है, सिर्फ एक आरएनए की स्ट्रैंड होता है। ऐसे वायरस जिनके अंदर सिर्फ एक आरएनए की स्ट्रैंड हो वो बेसिकली जो है प्लांट्स को इन्फेक्ट करते हैं। लेकिन ऐसे वायरसेस जो एनिमल्स को इन्फेक्ट करते हैं उनके अंदर 2 आरएनए स्ट्रैंड हो सकता है या एक आरएनए स्ट्रैंड हो सकता है या 2 डीएनए स्ट्रैंड भी हो सकता है, डिपेंड करता है। लेकिन कभी भी आरएनए और डीएनए दोनों नहीं होगा, या तो सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए हो सकता है या डबल स्ट्रैंडेड आरएनए हो सकता है या डबल स्ट्रैंडेड डीएनए हो सकता है। Then bacterial viruses or bacteriophages are usually double stranded DNA virus। इसका मतलब कि TMV क्या है, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए वायरस है, लेकिन क्योंकि वो प्लांट्स को इन्फेक्ट कर रहा है। लेकिन बैक्टीरियोफेज क्योंकि बैक्टीरिया को इन्फेक्ट कर रहा है इसलिए वो कैसा है, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए वायरस है। उसके जेनेटिक मटेरियल कैसा है, 2 स्ट्रैंड्स हो गए उसके अंदर डीएनए के। प्रोटीन कोड्स को क्या बोलते हैं, कैप्सिड बोलते हैं, जिसमें छोटे छोटे यूनिट्स होते हैं जिसको हम बोलते हैं कैप्सोमियर, जो कि न्यूक्लिक एसिड्स को प्रोटेक्ट करते हैं। अब इन कैप्सोमियर्स की जो अरेंजमेंट है वो बहुत तरह से हो सकती है और डिपेंडिंग अपॉन द अरेंजमेंट ऑफ द कैप्सोमियर कई शेप्स हो सकते हैं वायरस के, ठीक है। नाउ सम वायरल डिजीजेस आर मेंशन इन योर बुक, मम्प्स, स्मॉल पॉक्स, herpes, influenza and AIDS. So you should know the name of the viral diseases, okay. AIDS also, you know, it is caused in humans by HIV virus. Then plant disease causing virus can cause plant diseases like mosaic formation, leaf rolling and curling, yellowing and vein clearing, dwarfing and stunted growth. मीन्स अगर वायरस जो है प्लांट्स इन्फेक्ट कर रहा है तो उसमें मोजाइक पैटर्न फॉर्म कर सकता है, लीव्स को जो है क्या करेगा, रोल कर देगा ताकि वो फोटोसिंथेसिस ना कर पाए। फोटोसिंथेसिस नहीं होगा तो क्या होगा कि वो येलो होने लगेंगे और उनके वेन्स में भी क्या होंगी, क्लॉटिंग ब्लॉटिंग होने लगेगी, उनकी ग्रोथ रुक जाएगी, ड्रॉफिज्म हो जाएगा उनमें, और स्टंटेड ग्रोथ की पौधे जो है वो बड़े नहीं होंगे, बढ़ेंगे नहीं पौधे। तो दीज आर सम वायरल डिजीजेस कॉज्ड इन प्लांट्स। सो यू शुड नो द स्ट्रक्चर ऑफ द वायरस, डायग्राम ऑफ द वायरस, द डिजीजेस कॉज्ड बाय इट, ओके। नाउ वायरस की तरह ही मिलता जुलता एक और ऑर्गेनिजम्स होता है जिसको हम वायरॉइड कहते हैं। वायरस में अभी हमने पढ़ा कि उसमें क्या होगा, जेनेटिक मटेरियल होता है प्लस प्रोटीन की कोट होती है। तो ऐसा ऑर्गेनिज्म जिसमें जेनेटिक कोट हो और जिसमें जेनेटिक मटेरियल हो और प्रोटीन कोट दोनों हो उसको हम क्या बोलेंगे, वायरस कहेंगे। लेकिन ऐसा ऑर्गेनिज्म कि जिसमें सिर्फ और सिर्फ जेनेटिक मटेरियल हो, कोई प्रोटीन कोड भी ना हो, अब ये समझ सकते हैं कि ये वायरस से भी ज़्यादा सिंपल है, ठीक है। वायरस में एटलीस्ट प्रोटीन कोड भी थी और एक जेनेटिक मटेरियल था, चाहे आरएनए चाहे डीएनए। बट वायरॉइड में क्या है कि इट इज़ हैविंग ओनली वन थिंग एंड दैट इज़ जेनेटिक मटेरियल, और वो भी जेनेटिक मटेरियल कैसा है, आरएनए है, ठीक है। सिर्फ एक आरएनए जो है वो इन्फेक्शियस अगर होता है तो ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम क्या बोलेंगे, वायरॉइड। तो ऑब्वियसली ये साइज़ में और भी छोटे होंगे, वायरस से भी छोटे होंगे और हाईली इन्फेक्शियस होते हैं। इनमें प्रोटीन कोड नहीं होता है, ये सिर्फ क्या है, इन्फेक्शियस जेनेटिक मटेरियल इज नोन एज वायरॉइड, ठीक है। एंड इट वाज डिस्कवर्ड इन 1971 बाय T.O. Diener and he observed them in a plant disease that is potato spindle tuber disease। इसमें क्या होता है कि ये वायरॉइड्स उन पोटैटो को क्या करते हैं, बजाय ओवल शेप के ग्रो करने के वो लंबे लंबे ट्यूबर शेप में, स्पिंडल शेप में हो जाते हैं, ठीक है। वो मीन्स आलू की जगह वो कैरेट के शेप के होने लगेंगे, ठीक है, कैरेट या रेडिश के शेप के, मीन्स स्पिंडल शेप होने लगते हैं। तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स को जिनमें सिर्फ इन्फेक्शियस, अब समझ सकते हैं कितना वो इन्फेक्शियस है। पहले वायरस में क्या था कि आरएनए भी, मतलब जेनेटिक मटेरियल और प्रोटीन भी थी इन्फेक्शियस, और यहाँ पे सिर्फ एक जेनेटिक मटेरियल ही काफ़ी है डिजीज़ कॉज करने के। लेकिन बट दिस इज़ बेसिकली ऑफ लोअर मॉलिक्यूलर वेट एंड इट इन्फेक्ट्स ओनली द प्लांट्स, थैंक गॉड नॉट इन द एनिमल्स। अच्छा, एक और वर्ड है
एक और ऑर्गेनिज्म होता है उसको हम कहते हैं प्रियन, PRION. दैट इज़ नॉट मेंशन इन UNCERT बट दैट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट. वायरस का हमने पढ़ा कि जेनेटिक मटेरियल प्लस प्रोटीन कोड. वायरॉइड का हमने पढ़ा ओनली जेनेटिक मटेरियल. प्रियॉन्स में क्या होता है कि ओनली प्रोटीन कोड होती है, कोई जेनेटिक मटेरियल नहीं. ठीक है, तो प्रियॉन्स भी क्या है, दोज ऑर्गेनिजम्स विच आर हैविंग इन्फेक्शियस प्रोटीन्स ओनली. तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स को हम बोलते हैं प्रियॉन्स. ठीक है, तो ये कॉम्पिटिशन्स में बेसिकली पूछता है PRIONS, प्रियॉन्स. तो 3 ऑर्गेनिजम्स हो गए, वायरस दैट इज प्रोटीन कोड प्लस जेनेटिक मटेरियल, इन्फेक्शियस, देन viroids only the genetic material is infectious, and prions only the protein is infectious. Okay, so this was all about this chapter, and then we have completed this chapter. Okay.